Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and enjoying your good health. Welcome back to Apex LMS online classes. Once more, is intermediate part 2 class, lecture number 12, in which we are going to talk about how to translate Urdu sentences into English. Your teacher HM Sikandar, and today's topic is translate into Urdu from intermediate part 2. It's a big question carrying almost 15 marks, just like essay, 15 marks, 15 and 30 marks. It's a huge weightage, and you shouldn't ignore this question. It's very practical or technical question, and if you are creative, and it's very easy, and it's as easy as ABC for you people if you are technical one and you try to understand the tenses or basic structure of sentences. So let's talk about, first of all, what is a verb. Verb is a part and parcel of every sentence. Without verb you cannot form any sentence. In English language, is very important word in every sentence. You cannot produce, you cannot make a single sentence without using verb. So let's talk about the definition of verb. What is verb? It's very important, alpha and omega of every sentence, or the part and parcel of every sentence. You cannot ignore it. Well, verb is an action or state verb. There are two types of verb. It can be in the form of action, which is performed, and it can be in the form of state, mental state, or let's talk about furthermore state word in every sentence, which means you cannot make a single sentence without verb in English language. But just remember two types of verb, action and state. Let's have some examples of both actions and states to understand, to make the things clear. He is happy. There is no action. It's a state of mind. You are happy, you are sad, you are overjoyed, gloomy, whatsoever. These are states of your mind, of your personality. So this word is verb. The center word is a verb. You may say is a linking verb, you may say is a state verb. Then another example, he seems happy. There is also a linking verb which is showing state of mind, happy. Is happy, seems happy. Both are states. Linking and state verb. In second sentence, we will come to know about the action verb. He kicks the ball. He kicks the ball. Look, action passes is kicks the ball. Transitive verb. If you have the basic structure, if you know about transitive, intransitive verb, you will inshallah easily be able to understand what is I'm saying and what I want to deliver you people. You must know transitive, the difference between transitive and intransitive verb first of all. Inshallah we will talk about it later. Just try to understand state and action verb here. He kicks the ball. Kicks, passing action to the ball. It's action, physical action. It's not state. She killed a snake. Killed is also a physical action or performance. It's not a state of mind or your personality. The simplest and the shortest sentence in English language is I am. I'm. Are you okay? Yes, I am. I am. Are you going? I'm. इतना शॉर्ट सा सेंटेंस आप उसका आंसर देते हैं, तो ये सबसे इंग्लिश में छोटा सेंटेंस है आई एम. तो इसमें भी देखिए बेटा वर्ब है, यानी सबसे छोटा सेंटेंस भी वर्ब के बिना नहीं बन सकता. शी लव्स, इंट्रांसिटिव वर्ब्स एक्शन. दे आर डिसीव्ड is also action or mental statement, you may say, in passive voice. These are examples of verb. Hope you got the idea or the difference between action or state verbs. So now today we are just going to talk about state verbs. We aren't going to discuss action verb yet.
we are going to discuss state verbs. So let's have formulas of both action and state verbs. In action verb formula, you may use or you must use subject, verb and object in a sentence. This is a word formation or basic word order in English sentence or action verb. The second is state verb formula, which is going to be discussed in this lecture. Subject, verb, noun or an adjective. It can be noun or adjective or noun as well. Both are vice versa. For example, look at this. He, verb is happy. Happy. Adjective, noun. It can be a noun as well. He is a teacher. Noun. There wouldn't be an object because action doesn't pass in the sentence. That's why we use this formula in state verbs, subject, verb, noun or adjective and etc. or complements etc. Subject complements. So let's talk about use of be forms, or what are the be forms. Today we are going to talk about be forms. Try to understand whenever I suggest or give notion to the be forms, you must have the idea or notion in your mind of is, am, are, was, were. Is, am, are and was, were are to be forms. There are other forms of to be forms, but I'm not going to discuss yet here. Is, am, are used in present and was, were are used in past. We make present and past, and inshallah I will tell you how many tenses there are. Basically 2 tenses, present and past, according to tense. There is no future tense. Inshallah we will talk about when we will start tenses. Is, am, are, past, was, were. Okay, we use is or was singular verb with singular subjects. He, she, it, Ali. They are singular subjects, and we always use in present with them is, he is, she is, it is, Ali is. And in past we definitely use he was, she was, it was, Ali was. And with plurals, we, you, they and boys. We are in present and we were in past. You are in present and you were in past. They are in present, they were in past. Boys are in present, boys were in past. First person singular I is quite different. I जो मैं है ये हमेशा मुख्तलिफ रहती है, यानी हर बंदे में अपनी अपनी मैं है, इसलिए उसने यहाँ पे भी अपनी मैं दिखा दी कि मैं इनके साथ नहीं चलूँगा, मैं अलग ही चलूँगा. ये जो मैं है ये बंदे को मार देती है. तो क्या कहते हैं, फुल पंजाबी का बड़ा खूबसूरत शेर है, फुल्लां दा तू इतर बता इतरा दा फिर कट दरिया है, मच्छियाँ वांगो तारियाँ ला फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका. अगर ये मैं ख़त्म हो जाए ना हम में, तो हम बेटा एक बहुत अच्छे इंसान, एक आजिज़, एक हम्बल बन जाते हैं. लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा था कि हर जगह मैं अपनी ही होती है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है. लैंग्वेज में भी आई ने मैं अपना ही रखा है. मसलन आई एम, इसका एक अलग सीगा है, ये अलग से प्रेजेंट में यूज़ करता है और पास्ट में आई वोज यूज़ करेगा. ठीक है, आई एम इज़ नहीं यूज़ करेगा और वर्ड नहीं यूज़ लेगा. इसमें आई एम, आई वोज, ये अलग से इनके साथ यूज़ होगी. सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. ही इज़ अ गुड स्टूडेंट. देखें, ही सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, अ गुड एडजेक्टिव है आर्टिकल के साथ, डिटर्मिनर के साथ, और स्टूडेंट में आप बेटा देखिए नाउन आ गया. यानी ये फार्मूला अक्सर हम स्टेट वर्ब्स में यूज़ करते हैं. ये हमारा एक्शन वर्ब में होता है. तो देखें जी, शी इज़, ही इज़ प्रेजेंट में, शी इज़ अ टीचर, ये नाउन आ गया इसके साथ. और इट इज़ अ गुड जॉब, इज़ अ गुड जॉब, इट्स भी बोलते हैं, और इट इज़ अ गुड जॉब. Ali is happy. She was upset. States, I am good, or I am a teacher. I was an arm wrestler. I was past में चला जाएगा. तो इस तरह बेटा इन शॉर्ट ये देखें, यहाँ पर हमने बात की कि वर्ब होता क्या है
और कितनी टाइप्स हैं वर्ब्स की, और हम किस टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे स्ट्रेट को, बाद में हम डिस्कस करेंगे एक्शन को। तो एक्शन में टू बी फॉर्म सबसे, स्ट्रेट में सबसे पहले हम टू बी फॉर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉरी, टू बी फॉर्म प्रेजेंट में इज़ आर को कहते हैं और पास्ट में वॉज वर को कहते हैं, और इसका ये सिंपल यूज़ है। अभी पहले लेक्चर में बस यही यूज़ करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में टू हैव फॉर्म्स, और उसके बाद हम इंशाल्लाह टेंसेस शुरू करेंगे, एक्शन वर्ब्स शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। सेंटेंसेस को समझना है आपने, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक जो बेस है बच्चों के लिए, जो मैट्रिक में टेंसेस को या क्रिएटिविटी को नहीं समझ पाए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे से समझें सेंटेंस होता क्या है। ये बच्चों जैसा है, लेकिन हम आपको बच्चे ही समझते हैं, और आप भी बेटा अपने आप को बच्चे समझ के ही समझेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो देखिए जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप ऑफ, ये 5 जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेटा एक्शन वर्ब में भी इस्तेमाल होंगे। इसी तरह अगर ये स्ट्रक्चर आपका भी ठीक हो जाता है तो आगे टेंसेस में आपके लिए बहुत आसानी है। ये वर्ड ऑर्डर है, किस तरह किस तरतीब में लगाना है। देखिए जी, सिंपल में अभी मैंने जो एग्जांपल यहाँ पढ़ी थी, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ टीचर, ये सिंपल पॉजिटिव मस्बत जुमले हैं, ठीक है, मस्बत जुमले। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले, जिसमें सिर्फ आपने नॉट का इजाफा करना है, बाकी वही पॉजिटिव होंगे। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हमने इकट्ठे कर दिए। देखिए, ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ नॉट अ टीचर, शी इज़ नॉट अ टीचर, इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, अली इज़ नॉट हैप्पी एंड शी वॉज नॉट अपसेट। ये भी सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है बेटा? इंट्रोगेटिव में सिर्फ गौर कीजिएगा, 2 चीज़ें ऐड होगी। सबसे पहले तो ये जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, यानी एम, वॉज, इज़, और यहाँ पर ये उठा के हम पहले ले आएंगे, बाहर सेंटेंस ही शुरू यहाँ से करेंगे। देखें, इज़ ही अ गुड स्टूडेंट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस इतना चेंज आना है। सवालिया जुमले में, इंट्रोगेटिव में सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को, जो वर्ब होना है उसे बाहर ले आना है, बाकी सारी तरतीब वही रहेगी। देखिए, इज़ ही अ गुड स्टूडेंट, इज़ शी अ टीचर, इनको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अब देखिए जी, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, अगर हम इन टाइप 2 और 3 और बल्कि 1 को भी सबको इकट्ठा कर दें तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बन जाएंगे। यानी सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, बाकी इज़ उधर ही है जैसे यहाँ पे था, और ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन नॉट लगा देना है। यहाँ पर देखिए, पहले वर्ब के बाद नॉट था, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्योंकि पहले आ गया। तो देखिए जी, इज़ ही नॉट अ गुड स्टूडेंट, इज़ ही नॉट, यानी सवालिया है, ये मस्बत है, ये नेगेटिव है, ये से कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, तो ये नॉट इसे कहते हैं। तो ये ऐड करके अब इस तरह सारे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को इकट्ठा कर देंगे। तो थर्ड, फिफ्थ एंड लास्ट आपकी जो है वो टाइप है सेंटेंस की, जो एवरेज सेंटेंस में होती है, जिसमें WH फैमिली यूज़ करते हैं। WH फैमिली, वाई, व्हेन, हाउ, विच, वेयर, ये WH फैमिली है। तो बेटा इसका इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल फार्मूला है कि आप ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव से, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इनको लगा दें तो बाकी सेंटेंस वही रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, तो ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। देखिए, वाई इज़ ही नॉट अ गुड स्टूडेंट, देखिए वाई WH फैमिली आ गया, इज़ इंट्रोगेटिव का आ गया, ही सिंपल का, और नॉट नेगेटिव का आ गया। यानी सारे इन चारों टाइप्स को इकट्ठा कर दें तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम समझ रहे हैं। इससे मुश्किल स्ट्रक्चर कोई नहीं है। आगे वो क्लॉजेज आएंगी, कॉम्प्लेक्स क्लॉज, सिंपल क्लॉज, कंपाउंड क्लॉज, वो अलग बात है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही है। वाई इज़ ही नॉट अ गुड स्टूडेंट, वाई इज़ शी नॉट अ टीचर, इन सब को गौर से पढ़ें और इस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं ताकि आपको आगे आसानी हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। Here we are going to talk about use of it and there as dummy subject or introductory words. Dummy subject, जब किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नज़र ना आ रहा हो और आप कंफ्यूज हो कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ हम फिर यूज़ ऑफ इट और देयर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कब करते हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए, ये नहीं कि सबके साथ ही लगाते जाएं आप। तो देखिए जी, सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं यूज़ ऑफ इट। बहुत सिंपल है, इसके
8-9 यूसेज हैं, लेकिन इस लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर अगर आप ये 6 को समझ लें तो यही काम आते हैं, यही इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा। तो इसलिए बाकी को मैं अभी नहीं डिस्कस करूँगा, तो आप इसको देखिए जी। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीज़ों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए इट इज़ अ चेयर, डॉल, पेन और कॉपी, ये सारी बेजान चीज़ें हैं, इसके लिए इट यूज़ करते हैं। वेदर, मौसम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ये सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। मसलन इट्स हॉट टुडे, आज गर्मी है, इट्स फाइन टुडे, आज बहुत अच्छा, इट्स रेनिंग आउटसाइड और इट्स डार्क, ये जितने भी अब मौसम है, सर्दी, गर्मी, बहार है, बारिश है, और इट्स हेलिंग, ओले पड़ रहे हैं, तो आपने वेदर को इट के साथ ही एक्सप्लेन करना है हमेशा। उसके बाद नंबर 3, डे, मंथ और ईयर के लिए, या डेट जिसे आप कहते हैं, इस फ्राइडे टुडे, इस जुलाई, इस 2020, यानी साल देखें, मंथ देखें, और डे को भी इट के साथ ही यूज़ करते हैं। उसके बाद नंबर 4 है एनिमल्स के लिए, इट इज़ माई डॉग, और आई लव माई डॉग एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट। इट, ये यहाँ पर डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ, प्रोनाउन, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर इट यूज़ किया। टू गिव एम्फेसाइज, एम्फेसिस और स्ट्रेस, किसी चीज़ पर जोर देना, तलकीन करना, उसके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। मसलन आपने बड़ा कॉमन सेंटेंस पढ़ा होगा, इट वॉज अल्लामा इकबाल हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, वेरी सिंपल सेंटेंस, आपने ऐसे में पढ़ा होगा, ये इकबाल ही थे जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर दिया। तो यहाँ पर देखें, इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ, हु सेव्ड यू, जिसने तुम्हें बचाया था, ठीक है, इट्स आई। इट वॉज माई ब्रदर, ये मेरा ही भाई था, हु वोन द प्राइज, जिसने इनाम जीता। अब ये जी बड़ा कॉमन है, टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हमेशा इट यूज़ करेंगे टाइम के साथ। इट्स 7 o'clock, इट्स 7:30, 6, जो भी है, 7:30, 6:30, इसके लिए आप यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि यूज़ ऑफ इट का आपको समझ आ गया कि ये 6 यूसेज अच्छे से जेन में रखें, रट्टा मारें, बार बार देखें वीडियो को, और आगे मैं प्रैक्टिस दूंगा तो उनमें से आपने रिकग्नाइज करना है कि ये कहाँ आया है। यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ देयर, देयर के यहाँ पर मैं फ़िलहाल 2 यूज़ जो है वो आपके यूसेज आपके सामने रखूँगा। नंबर 1, यूज्ड एज डमी सब्जेक्ट टू फुलफिल गैप, गैप को पूरा करने के लिए एज ए डमी सब्जेक्ट। जैसे देखें इट के कितने सारे यूसेज, लेकिन ये गैप, मसलन मैं कहता हूँ यहाँ क्लास में, यहाँ कामोकी में एक एपेक्स कॉलेज है, पंजाब में बहुत सारे एपेक्स कॉलेज हैं, या मैं कह सकता हूँ हमारे घर में 10 अफराद हैं, हम इस क्लास में 5 बच्चे हैं, ये सारे गैप को फिल कर रहे हैं, और इसके लिए हम यूज़ ऑफ देयर यूज़ कर सकते हैं। यूज़ टू इंडिकेट प्लेस एंड पोजीशन, कभी जगह को और प्लेस को या किसी पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों की एक एक एग्जांपल मेरे सामने है, आपके सामने है। देयर आर 7 गर्ल्स इन द क्लास, ये गैप को फिल कर रहा है। और दूसरा, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा। देखिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के तौर पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर है, लेकिन दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर सब्जेक्ट है और इंट्रोडक्टरी है और डमी सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये पोजीशन को, प्लेस को ज़ाहिर कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा, यहाँ वहाँ, हेयर यहाँ और वहाँ देयर, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये था यूज़ ऑफ देयर। अब आखिरी यूज़ इस आज के लेक्चर में टू बी फॉर्म्स के हवाले से, जो कि एडिशनल है, वो है टू बी प्लस इन्फिनेटिव। टू बी यानी, अब मैंने बोला टू बी का जब भी वर्ड आए तो आपके ज़हन में इज़, एम और वॉज वर आना चाहिए, और उसके बाद इन्फिनेटिव होता है बेटा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, जिसे मस्दर बोलते हैं। अच्छा, ये उर्दू में कैसे दिखाई देता है, फ़िक्रे में आपको करना है कि सेंस में आएगा जी। देखिए, इसे अपना फ़र्ज़ अदा करना है, पाकिस्तान को अजीम बनना है, बनना है, मुझे जाना है, आपको एक अच्छा आदमी बनना है या बड़ा आदमी बनना है। आप गौर करेंगे सार फिक्रे के आखिर में ना है और ना है। अगर यहाँ पर था थी हो जाता, मसलन आपको अपना फ़र्ज़ अदा करना था, तो बेटा वोज़ वर आ जाएगा, अगर है तो ईज़ा रहम आ जाएगा, सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। वेरी सिंपल। अब देखें जी इसकी ट्रांसलेशन। ही इज़, ये देखें, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका टू बी फॉर्म, और टू परफॉर्म, ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे कहते हैं इन्फिनेटिव। हिज ड्यूटी, अब ये ऑब्जेक्ट की सेंस में आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ऐसा। ही इज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, पाकिस्तान इज़ टू बी ग्रेट, पाकिस्तान को अजीम बनना है। आई एम टू गो, ये टू गो इन्फिनेटिव, आई एम टू गो। अच्छा, यू आर टू बी अ गुड मैन, यू आर टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन,
आपको एक कामयाब इंसान बनना है, आपको एक बड़ा आदमी बनना है, आपको एक अच्छा आदमी बनना है, ये जो बनना है, मुझे अभी खाना बनाना है, मुझे अभी ये करना है, मुझे अपना होमवर्क करना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे खाना खाना है, मुझे टीवी देखना है, ये जो आप जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे इसमें सिर्फ टू बी फॉर्म्स के बाद इन्फिनेटिव लगा दें तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज टू बी फॉर्म समझ आ गया है। कल हम इंशाल्लाह टू हैव फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। बाकी टू बी फॉर्म का एक और यूज़ है, वो टेंसेस में है, जो कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट पास्ट में, मसलन ही इज़ गोइंग और ही वॉज गोइंग, इस तरह की सेंटेंस वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका यूज़ ऑफ इट, देयर और टू बी इन्फिनेटिव फॉर्म। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिस। अब यहाँ पर ये मैंने कुछ सेंटेंसेस उर्दू के लिख दिए हैं ताकि आप इसे को ट्रांसलेट करें। एक्सरसाइज नंबर 1 है। इस प्रैक्टिस को, एक्सरसाइज को सॉल्व करके बेटा अपने रेलिवेंट कैंपस के टीचर को एक्सरसाइज सबमिट करवाएं और उनसे करेक्शन करवाएं, उनसे डिस्कस करें। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। देखें, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसका मतलब है ये प्रेजेंट में है। सबसे पहले टेंस देखें जो आखिर में नज़र आएगा, और यहाँ पर देखें ये था आ गया, ये पास्ट में चला गया। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है आपको, ये सवालिया है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर आपको नेगेटिव, हम अच्छे दोस्त ना थे, पास्ट है लेकिन नेगेटिव है। इस तरह ये पास्ट है लेकिन सिंपल है, ये इंट्रोगेटिव है। और ये आपको पहले सेंटेंस को रिकग्नाइज करना है कि इस 5 टाइप्स में से कौन सा है। जी, तो मैं एक थोड़ी सी मदद करता हूँ आपकी। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम, यू, अब यू प्रेजेंट है तो आर लगेगा, यू आर बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, यू आर गेट वेरी गुड बॉय या यू आर ए गुड बॉय। आज मौसम बहुत सुहाना है, मौसम आ गया तो यूज़ ऑफ इट आएगा, इट इज़ फाइन टुडे, इट्स नाइस टुडे, ठीक है। और इज़ इसलिए लगा कि ये है, अगर था होता तो इट वॉज आ जाता। इस तरह बेटा आपने ये सारे सेंटेंसेस सॉल्व करके आपने रेलिवेंट कैंपस के टीचर को सबमिट करवानी है एक्सरसाइज, और ताकि आपकी ये जो गलतियां हैं ये दूर हो सके। ये देखिए नीचे लास्ट में सेंटेंसेस मैंने मिक्स करके लिखे हुए हैं, इन्फिनेटिव के भी हैं। देखिए, हमें स्कूल जाना है, असलम को घर के काम करने हैं, ने है, ना है, ये सारी सेंसेस भी आप अच्छे से समझ ले। अगर इस तरह रूल्स को समझते जाएंगे हर लेक्चर में, तो 20-25 लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह आपके पास एक अच्छा खासा मवाद होगा, आप क्रिएटिव बन चुके होंगे, आप खुद से ट्रांसलेशन करने के काबिल हो जाएंगे। तो देखें जी, हमारे 81 से 90 जो नेक्स्ट ईडियम्स हैं, हम 100 पे जाके ब्रेक लगाएंगे। 100 पूरे करने हैं हमने, आप साथ साथ याद करते जाएं, आप ब्रेक मत लगाइएगा, आप चलते रहें जी। तो सबसे पहले 81, फेस द म्यूज़िक, मुश्किल का सामना करना, मुश्किलात का सामना करना। प्लान योर फ्यूचर अदरवाइज यू विल फेस द म्यूज़िक, प्लान योर फ्यूचर अदरवाइज यू विल फेस द म्यूज़िक। अपने मुस्तकबिल के बारे में वो कुछ मंसूबाबंदी करें, वरना आप बहुत सारे मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। फेयर सेक्स, फेयर सेक्स बेटा औरत को कहते हैं, खातून को कहते हैं, लड़की को कहते हैं फेयर सेक्स। वी शुड रिस्पेक्ट फेयर सेक्स, हमें औरतों की इज्जत करना चाहिए। इसका उल्टा सीधा नेगेटिव मीनिंग नहीं लेना। इसका फेयर सेक्स मीन अच्छा जो है जिन्स है उसके लिए यूज़ किया गया है, सॉफ्ट जिन्स, तो वो औरतें हैं, लड़कियां हैं। नेक्स्ट ही फेयर वेदर फ्रेंड्स, हाँ मतलबी दोस्त, हर जगह है मीन फ्रेंड, वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम ऑन फेयर वेदर फ्रेंड्स, हम मतलबी दोस्तों पर एतमाद नहीं कर सकते। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, irritation, drawback, tension. There must be a fly in the ointment somewhere. इसके बाद fall a prey to, fall a prey to, fall a prey to क्या है? शिकार हो जाना, to be hunted. Deer fell a prey to hungry lions. अब यहाँ पर ये deer के स्पेलिंग ठीक कर लेना, D-E-E-R है, deer, हिरन। fell a prey to hungry lions, भूखे शेरों के शिकार बन गई। फाइंड फॉल्ट विद, क्रिटिसाइज, ये नुक्ताचीनी नहीं होती जब एक दूसरे को आप क्रिटिसाइज करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। शी फाइंड्स फॉल्ट विद एवरीथिंग आई डू, मैं जो भी करता हूँ उसमें नुक्ताचीनी करती है। अच्छी बात होती है, बाज़ औक़ात क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है, और बात फॉर द सेक ऑफ जस्ट आप कह लें क्रिटिसिज्म और इस्लाह करना या चेंज के लिए। ओके, फीदर्स इन वन कैप, फीदर कहते हैं पर को, पंख को। पुराने वक्तों में जब रेड इंडियंस टाइप लोग थे और जब वो कोई एक मार का मारते थे तो अपने यहाँ पर सर पे एक पंख और लगा लेते थे,
तो आप देखें किसी मेजर जैसे जनरल कर्नल यहाँ पे लगाते हैं, छोटे छोटे बैज लगा लेते हैं, अपनी जो कोर्सेज़ किए होते हैं उन्होंने, या बहुत सारे जो पेपर्स दिए होते हैं, स्टेजेस क्लियर की होती हैं, तो वो पुराने वक्तों में पंख लगाते थे जितने, तो फीदर इन वंस कैप यानी सक्सेस, कामयाबी। सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इज़ अ फीदर इन इस कैप, यानी आपकी कामयाबी के अंदर एक जो है वो इजाफा हुआ है, एक नया निखार आ गया। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू चंद, कभी कभी गुड मूवीज़ आर फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कम रह गई हैं अच्छी फिल्में। क्राई फार क्राई फ्रॉम, ठीक है, टोटली डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ। हिज एक्शन आर फार क्राई फ्रॉम व्हाट ही सेज। फ्लैश एंड ब्लड, आपका खूनी रिश्ता या रिलेटिव्स, आपका अली इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड। थैंक यू सो मच, आज के लिए यही काफ़ी है। Thank you so much for joining us. Inshallah, see you in the next lecture. In the next lecture, we will talk about to have forms in detail. Thank you. Allah Hafiz.